Good morning, everyone. I am Naresh Kumar Sahu. We are going to start a new course about the CA and CMA Foundation Mathematics. Okay, let's start the new chapter, equation. First, what is an equation? The equation is defined to be a mathematical statement of equality. Mathematical statement of equality. First, यहाँ पर इक्वेशन है. इक्वेशन का मतलब है इक्वालिटी का साइन. तो अगर एक इक्वेशन है मतलब वो इक्वालिटी का साइन होना जरूरी है. दैट देयर शुड बी ए साइन ऑफ इक्वालिटी. और इक्वालिटी का साइन है इसका मतलब दो तरफ होगा उसका. एक लेफ्ट हैंड में एक एक्सप्रेशन होगा, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और राइट हैंड साइड में भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा. एंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल टू साइन we are called, this is the LHS part, the left hand side of that equation, and the expression is present in the right side of the equal to sign, उसको हम बोलते हैं RHS और right hand side. So equation का structure ऐसा ही होता है, मतलब LHS equal to sign RHS. Okay, so let me give an example. So this let x plus 1 is equals to 5. This is our equal to sign, this is the LHS part, and this is the LHS part. Okay, this is x is the unknown variable. X is here, x is the variable of this equation. What is variable? Variable can have any different value. और this equation holds. If you are going to solve this equation, अगर इस equation को हम solve करेंगे तो x का वैल्यू क्या होने पर ये जो LHS और RHS जो इक्वल हो जाएंगे. So x plus 1 is equal to 5. So x is equal to, we can say 5 minus 1, or we can say x is equals to 5 minus 1 is 4. इसका मतलब अगर x का वैल्यू 4 है तो ये LHS और RHS दोनों सेम है. Let's check it out. So when x is equal to 4, LHS is 5 and RHS is equal to 5. So there are different types of equation we have. According to the degree of the equation, first let me tell you the what is degree of the equation. So let me tell you the degree of the equation. The degree is the highest power of the unknown variable. अगर इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल होता है, उस अननोन वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसे हम कहते हैं डिग्री. उसे हम कहते हैं डिग्री. सो फॉर एग्जांपल वी हैव एग्जांपल x plus 1 is equals to 5. तो यहाँ अननोन वेरिएबल कौन है? x. x का पावर कितना है? x का पावर है यहाँ 1 है. सो हियर द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1. Here the degree is 1. So let me tell you another example. Suppose x square plus 5x plus 6 is equals to 0. ये एक इक्वेशन है, ये इसका LHS है, ये इसका RHS है. बट व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन वेरिएबल? यहाँ x है, तो उसी x का हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर है 2. So here degree of this equation, degree is 2. So x cube minus 1 equal to 0. ये भी एक equation है. For this equation highest power is x, the highest power of x is 3. So degree of this equation is 3. Okay, so according to the degree of the equation, this equation are divided by some following categories. Let me tell you that following categories. So types of equation according to degree. Types of equation. The first one is the linear equation. Second one is the quadratic equation. Third, cubic equation.
for biquadratic equation, लीनियर इक्वेशन का मतलब जो इक्वेशन उसका डिग्री इक्वल टू 1 होना चाहिए तो लीनियर इक्वेशन। डिग्री अगर 2 है देन दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। डिग्री अगर फॉर एग्जांपल 4 है तो वो है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यू कैन डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री। लीनियर इक्वेशन whose डिग्री इज 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डिग्री 2 हो, cubic equation if degree is 3, and biquadratic equation if degree is 4. So let me give you an example of each of following cases. Here suppose 2x plus 5 is equals to 7. This is example of linear equation. Quadratic equation x square minus 2x plus 4 equal to 0. Quadratic. Cubic equation x cube plus 2x square is equal to 5x plus 3. This is a cubic equation. Biquadratic x4 minus 2x plus 1 equal to 0. This is biquadratic. Here simple equation. Simple equation means, in other words, this is linear equation. So simple equation, linear equation both are same. दोनों एक ही बात है। किसी किसी बुक में linear equation को simple equation भी लिखा जाता है। तो simple equation मतलब डिग्री, what is the degree? Degree is 1. If the degree of the equation is 1, then it is a simple equation or linear equation. So let's start some problem. Let me take example. 2x minus 1 is equals to 5. Here is a example of linear equation, simple equation. For what value of x का वैल्यू क्या होने से ये दोनों LHS और RHS सेम होंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करने का कुछ सिंपल रूल है। द फर्स्ट थिंग इज, कोई थिंग अगर लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा। लेफ्ट में अगर माइनस है तो राइट में प्लस होगा। लेफ्ट में प्लस है तो राइट जाएगा तो माइनस होगा। और मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा। अगर लेफ्ट में डिवाइड है तो अगर दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। सो हम इसको सॉल्व करने के लिए -1 को राइट साइड भेज देंगे। सो 2x इज इक्वल्स टू, इधर 5 है माइनस प्लस 1, सो 2x इज इक्वल टू 6 एंड x is equals to 3. So we can say this equation holds for x is equal to 3, or we can say the solution of this equation is x is equal to 3. अगर x का वैल्यू 3 है तो LHS और RHS दोनों सेम है, इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो देखो 2 into 3 is 6, 6 minus 1 is 5, so LHS भी 5, RHS भी 5, so both are equal. तो अगर क्वेश्चन आए आपके पास देयर इज प्रॉब्लम, तो इसे हमने सॉल्व करने के लिए बोलेगा इक्वेशन दिया होगा, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन. फॉर एग्जांपल another example, suppose 2x by 3 plus 4 by 5 equal to 1 by 6. ये भी एक क्वेश्चन है. इक्वेशन 2x by 3 plus 4 by 5 equal to 1 by 6. ऐसे फ्रैक्शन को देख रहे मतलब घबरा मत जाना, ये वेरी सिंपल. वी हैव टू प्लस और माइनस ऑफ दिस फ्रैक्शन नंबर. सो 2x by 3, इधर 4 by 5 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा. सो इक्वल टू 1 by 6 माइनस 4 by 5. ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा. ओके, so 2x by 3 equal to, or the LCM
6 और 5 का एलसीएम क्या होगा 30। सो 5 माइनस 4 6 24 इक्वल टू कितना 5 माइनस 24 इज माइनस 19/30। सो 2x by 3 इज इक्वल टू माइनस 19/30। देखो ध्यान से देखो, ये जो 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और 3x के साथ डिवाइड हुआ है, नीचे है मतलब डिवाइड है, ये ऊपर है तो ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम क्या करेंगे 3 को अगर उधर ले जाएंगे, 3 देखो उधर नीचे है तो ऊपर जाएगा, 2 ऊपर है तो ये नीचे जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में जाएगा, न्यूमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो वी कैन से x इज इक्वल्स टू माइनस 19/30। 3 जाएगा ऊपर और 2 जाएगा नीचे, तो 3 10 जा 30। सो इधर 1 है तो माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10 टू जा 20। सो योर आंसर इज x इज इक्वल्स टू माइनस 19/20। तो x is equal to minus 19/20 is the solution of this particular linear equation. Let's take another example. X plus 4/4 plus x plus 5/3 is equals to 11. सिर्फ प्लस माइनस करना है, कुछ नहीं है। तो इधर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का ये 4 और 3 है। 4 और 3 मतलब हम 4 और 3 का एलसीएम लेना है, बोले तो एलसीएम 4 and 3 12, एलसीएम इज 12, वेरी सिंपल 12। तो 4 से कितना मल्टीप्लाई करने से 12 होगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो 3 टाइम्स x प्लस 4 एंड इधर 3 से 4 मल्टीप्लाई करें तो 12 होगा, सो प्लस 4 टाइम्स x प्लस 5 इक्वल टू 11। तो सॉल्व 3 इंटू 3, देखो x और 4 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 इंटू x इज 3x, 3 plus 3 into 4 is 12. This is 4x. This is 4 times 5 is 20 by 12 is equals to 11. तो 3x और 4x कितना होगा 3x 4x, 3x plus 4x 7x, 12 plus 20 32 by 12 is equals to 11. तो 12 डिनोमिनेटर में है, नीचे है, वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो 7x प्लस 32 इज इक्वल टू 11 इंटू 12, 11 इंटू 12, यस। 7x इज इक्वल्स टू 11 इंटू 12 कितना 132 माइनस 32, तो 7x इज इक्वल्स टू 100, तो x इज इक्वल्स टू 100 by 7. Okay, this is the solution of this linear equation. So let's do some problem about this equation. The first problem, solution of the first one. First one x plus 24 divided by 5 is equals to 4 plus x by 4. तो यहाँ भी x है, LHS में भी x है, RHS में भी x है। तो हम एक काम करेंगे कि जो जहाँ भी x है सब x को एक साइड में लिखेंगे। सो x plus 24 by 5, इधर x by 4 देखो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस x by 4 इक्वल टू RHS में सिर्फ
4 है। तो 5, 4, 4 and 5 का LCM है 20. So let's take the LCM 20. 20 मीन्स यहाँ 5 से 4 मल्टीप्लाई करके 20 होगा. सो 4 टाइम्स x प्लस 24 माइनस 5 टाइम्स x इज 5x इक्वल टू 4. 4 into x, 4x. 4 into 24 is 96. Minus 5x is there, okay, by 20 is equals to कितना है 4 है. So 4x minus 5x कितना है 4x minus 5x is minus x plus 96 by 20 equal to है 4. 20 उधर जाएगा तो यहाँ डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा. तो माइनस एक्स प्लस 96 इज इक्वल्स टू 24 जा 80. तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 96. 80 माइनस 96 इज माइनस 16. सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 16. सो एक्स इज इक्वल टू 16. The solution x is equal to 16. Answer is x is equal to 16 for the first one. Let's go to the second one. Second one है यहाँ वेरिएबल y है, y के टर्म में वेरिएबल है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो y प्लस 11 बाय 6 माइनस y प्लस 9 sorry y plus 1 by 9 equal to y plus 7 by 4. यहाँ देखो हर टर्म में y है, तो एक काम करते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद इसके साथ ऐड करेंगे, नो प्रॉब्लम. तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 9 and 6? द एलसीएम ऑफ 9 and 6 कितना होगा 18. तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करें तो 18 होगा 3. तो 3 इंटू वाई प्लस 11 माइनस 9 में कितना मल्टीप्लाई से 18 होगा. तो 2 टाइम्स वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 7 बाय 4. तो कैलकुलेट करें 3y. 3 इंटू 11 इज 33 माइनस 2 इंटू वाई 2y. 2 इंटू 1 माइनस 2 by 18 is equal to y plus 7 by 4. Three y minus 2y is just y. 33 minus 2 is 31 divided by कितना है 18 इक्वल टू y प्लस 7 बाय 4. सो अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 18 इधर मल्टीप्लाई होगा. सो इट विल बी 4 टाइम्स y प्लस 31 इक्वल टू 18 टाइम्स y प्लस 7. तो कितना है 4y प्लस 31 4 जा 124. 18 into y is 18y. 18 7 जा 126. ओके, सो y को इधर ओके 4y माइनस 18y. y एक साथ यहाँ प्लस है तो उधर रहेगा तो माइनस होगा इज इक्वल्स टू 126 माइनस 124. ये प्लस है वो माइनस. तो 4y माइनस 18y, 4y माइनस 4 माइनस 18 इज 14. ये कितना होगा माइनस 14y, क्योंकि यहाँ बड़ा साइन है. 4y माइनस 14y and 126 minus 124 is 2. So y is basically 2 by minus 14, or we can say this is 2 1 ja 2 7 ja minus 1 by 7. So y is equals to minus 1 by 7 is the answer.
Answer is y is equals to -1/70. Let's move on to third one. Third one is x by 0.5, ये डेसिमल में है, -1/0.05 प्लस x by 0.005 -1/0.0005। तो एक काम करते हैं, जहाँ पे x है उसको एक साइड में, जहाँ x नहीं है उसको डिफरेंट साइड में। तो ये सिंपल हो जाएगा x by 0.5 प्लस x by 0.005 इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस होगा 1/0.05 प्लस 1/0.0005। ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, सपोज यहाँ पे 1/0.1 है। 0.1 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन डेसिमल में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शन में 0.1 क्या होगा, 1/, दिस इज 1/10। ये 10 जाएगा ऊपर, 10 जाएगा ऊपर, सो इट विल बी 10/1 विच इज नथिंग बट 10। तो उसी टाइप का मेथड यूज होगा यहाँ। हम यहाँ 0.5 को क्या लिखेंगे, 5/10। इसको क्या लिखेंगे, x बाय, दिस इज 5/1000 एंड दिस इज our 1/5/100। ये क्या है, दिस इज 1/5 कितना जीरो, एक डेसिमल के बाद 1 2 3 4 जीरो। सो देखो, जो डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में हो जाता है, बट नीचे का नीचे है तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ वो 10 ऊपर गया था, यहाँ ये 10 भी ऊपर जाएगा, 1000 ऊपर जाएगा, 100 भी ऊपर जाएगा, ये 10,000 भी ऊपर जाएगा। तो वी कैन राइट दिस इज 10x/5, दिस इज 1000x/5 equal to 100/5 equal to 10,000/5। तो 5 2s are 10, 5 200,000। तो ये 2x है, ये 200x है, 2x प्लस 200x। यहाँ क्या होगा, 5 20 है, 5 2000, 20 plus 2000. So 2x plus 200x is 2 not 2x equal to, this is 2020, oh 2020. So x equals to 200 को यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 2020/202। ओके, तो डिवाइड करेंगे तो सिंपल 10 आएगा। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 10। तो इस इतना बड़ा खतरनाक क्वेश्चन का आंसर है 10, x इज इक्वल टू 10। ओके, लेट अस स्टार्ट do some word problem of equation. The first problem, the sum of two numbers is 52 and their difference is 2, then find the numbers. Okay, the given that the sum of the two numbers are 52 and the difference of the two number is 2. So we can do this in two methods. First method is, let the first number be x. Let the first number be x. First number is your x. अगर पहला नंबर x है तो उसका और वो अनदर नंबर का सम 52 होना चाहिए। तो सेकंड नंबर कितना होगा, सेकंड नंबर कितना होगा, ऑब्वियसली 52 - x।
तो पहला वाला x है तो दूसरा वाला कितना होगा 52 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 52। देखो ऐड करके देखो 52 माइनस एक्स प्लस एक्स 52। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2, डिफरेंस होना चाहिए 2। सो वी टू फाइंड द टू नंबर, सम इज 52, डिफरेंस इज 2। तो सम के हिसाब से ये जो डाटा दिया है, इस डाटा के हिसाब से हम पहले एक नंबर को x, दूसरे नंबर को 52 माइनस एक्स निकाल दिए। तो अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, डिफरेंस है 2। तो x फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है आपका, और सेकंड नंबर कितना है 52 माइनस एक्स। इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2, ये आपका सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो x नेगेटिव साइन है तो माइनस 52, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 है, x प्लस एक्स ये 2x, ये 52 इधर माइनस है, उधर जाएगा तो कितना होगा प्लस, तो 2 प्लस 52, so 2x is your 52 and the x is your 2 plus 52 is 54, 2x is equal to 54 and x is equal to 54 by 2, 54 by 2 27। तो x का वैल्यू हो गया 27। द फर्स्ट नंबर x is 27, सो सेकंड नंबर कितना होगा, सेकंड नंबर 52 माइनस एक्स, तो 52 माइनस द फर्स्ट नंबर, तो 52 माइनस 27 is how much 25। first number 57, second 27, another number 25। okay, so we can do this in another method, second method. This was the first method, this is the first method, this is the second method. The sum of two numbers is 52, the difference is 2. So let the first number be x and the second number be y. फर्स्ट नंबर x और दूसरा नंबर है y, दोनों का सम कितना होना चाहिए 52, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2। तो x प्लस y 52 और x माइनस y 2, x प्लस y 52, x माइनस y 2। तो अभी इन दोनों को हम कर देंगे एडिशन, जस्ट ऐड दैट। ये दिस इज आवर इक्वेशन 1, वी कैन से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, ऐड कर देने से क्या होगा x प्लस x कितना होगा 2x, y यहाँ माइनस साइन है, y माइनस y कैंसिल, 52 प्लस 2 कितना होगा 54, so 2x 54, x is equal to 27, so y is equals to 54 minus, so y is equals to 52 minus 27 is 25। तो इस मेथड से भी 27 to 25 आंसर आएगा, इस मेथड में भी x का वैल्यू 27, मतलब फर्स्ट नंबर आपका 27, सेकंड नंबर 25। ओके, let's move on to our second questions. Second question, divide 56 into two parts so the 3 times of the first part exceed 1/3 of the second by 48। डिवाइड मतलब यहाँ 56 है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे कि जो फर्स्ट पार्ट का, यहाँ पे वही सेम रूल लगा सकते हैं, फर्स्ट नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर कितना होगा, ये हमारा पहला नंबर आपका हो गया x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दोनों का सम कितना 56, तो फर्स्ट पार्ट x, तो सेकंड पार्ट सम है 56, तो 56 माइनस x होगा। और क्या बोला 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट का 3 गुना 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट
एक्सीड फ्रॉम, एक्सीड मतलब ज्यादा, मतलब फर्स्ट पार्ट ज्यादा है सेकेंड 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट से, कितना ज्यादा है 48 ज्यादा है। तो पहले इसको करो, 3 गुना करो फर्स्ट पार्ट का तो 3x होगा, 3 गुना करेंगे तो सेकेंड पार्ट का 1/3 करना है, 1/3 मतलब 3 डिवाइड करो, ओके डिवाइड 3 तो 1/3 ऑफ 56 माइनस x, ओके। इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये ज्यादा है, कौन ज्यादा है, पहला वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है 48, ओके। सो आवर इक्वेशन इज फर्स्ट पार्ट 3 गुना ऑफ द 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट माइनस 1/3 of the second part is equals to 48, okay। So either 1 है तो we can take LCM 3 times 3x is 9x minus 56 minus minus plus x equal to 48। So 9x plus x कितना होगा 10x minus 56 by 3 is equals to 48। So 3 को हम नेक्स्ट साइड ले जाएंगे, so 10x minus 56 equal to 48 into 3, (144). So 10x is equals to 144 plus 56. So 10x is equal to 44 plus 0, obviously this is 200. So x is equals to 0 0 cancel 20. So x is 0 20. The first part is 20. I mean what is the second part? Second part is obviously 56 minus 20, which is equals to, this is the first part, this second part, minus 20 is obviously this is 36, okay। So we can divide the 56 into this two part, is one is 20, another is 36। So the 3 times of this number obviously that is 60, इसका 3 गुना करते हैं, देखो 3 गुना कितना होगा 60, इसका 1/3 कितना होगा, 1/3 कितना होगा इसका 12, इन दोनों का डिफरेंस देखो 48 हो रहा है, ओके। सो आंसर इज दिस 20 and 36 your answer। Next question, the denominator of a fraction exceeds from the numerator by 5 and if 3 is added to the both, the fraction becomes 3/4, find the fraction। We know the fraction there is a, ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। ये बोला है जो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एक्सीड्स फ्रॉम द न्यूमरेटर बाय 5, तो न्यूमरेटर आपका जो भी होगा, न्यूमरेटर आपका जो भी होगा, डिनोमिनेटर उससे 5 बड़ा है, इज एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 5, तो नीचे कितना होगा 5 ज़्यादा, सो x से 5 ऐड करो तो मतलब x plus 5, ये आपका न्यूमरेटर है। दिस इज आवर फ्रैक्शन। ओरिजिनल पहले जो फ्रैक्शन दिया ये जो पहले वाला फ्रैक्शन है, उसके बाद एक फिर कंडीशन दिया एंड इफ 3 इज एडेड टू द बोथ, अगर हम 3 ऐड कर देंगे बोथ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। तो लेट्स ऐड 3 इन द बोथ, तो यहाँ पे 3 ऐड करो, यहाँ पे भी 3 ऐड करो, तो फ्रैक्शन कितना होगा 3/4। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। तो x plus 3 by x plus 5 plus obviously x plus 8 equals to 3/4। दो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, ओके। तो 4 times x plus 3 equal to 3 times x plus 8, तो 4x plus 12 equal to 3x plus 24। तो 4x माइनस 3x होगा, ये 24 माइनस 12, तो आपका x इज इक्वल टू आ गया 12, x इक्वल टू हो गया 12। तो x को क्या लिए थे, x वाला न्यूमरेटर था,
तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर आपका हो गया कितना 12, तो डिनोमिनेटर कितना होगा 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 मतलब 17। तो फ्रैक्शन कितना है, द फ्रैक्शन इज 12 मतलब न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, तो 12 बाय 17। इस कंडीशन को हम चेक भी कर सकते हैं। देखो 12 बाई 17 दोनों तरफ 3 3 ऐड करो तो 12 प्लस 3 17 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना है 15, 17 प्लस 3 20, 20 15 बाई 20, 15 बाई 20 कैंसिल करो 5 से, सो 5 3 जा 15, 5 4 जा 23 बाई 4, तो आंसर इज 12 बाई 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diagonal of a rectangle is 5 cm and one of the side is 4 cm, then find the area। so पहले आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, कैसे होता है। रेक्टेंगल जिसका एक लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है, दिस इज द लेंथ, ये उसका ब्रेथ है, हम इसको जोड़ देंगे, ये है आपका डायगोनल, दिस इज द डायगोनल। तो डायगोनल दिया है 5 cm और एक साइड दे दिया है 4 cm। तो आपको पता है कि ये जो रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो अगर हम इसको कुछ नामकरण कर देंगे ABCD, तो ध्यान से देखो ये 4 cm मतलब ये भी 4 cm, तो ये हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो ABC, इस ABC ये जो ट्रायंगल है ABC, ध्यान से देखो इसको ABC, ये जो आपका ट्रायंगल है वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, लेट इसको हम मानते हैं x, सो लेट योर BC इज x, BC को x मानते हैं। तो अभी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस, और वी कैन से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो h होता है हाइपोटेंस, p होता है परपेंडिकुलर और b होता है बेस। तो जो बड़ा साइड होता है वो ये होता है जनरली, दिस इज हाइपोटेंस h। इन दोनों में से एक को हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं और एक को हम बेस बोल सकते हैं, दूसरे बेस, वी कैन से। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल के हिसाब से बड़ा साइड क्या है AC, तो इस ट्राइंगल के हिसाब से होगा ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका AC स्क्वायर। सो AB पता है, AB है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC x, हम x लिए हैं इसको, ये है 5 का स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है इज इक्वल 25, 5 का स्क्वायर 25, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज 9, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, जनरली प्लस माइनस 3 होता है, प्लस 3 भी होता है माइनस 3 भी होता है, लेकिन ये लेंथ की बात है, हम लेंथ की बात कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये एक लेंथ है, हाइट है, लेंथ। सो ओनली पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, माइनस को हम इग्नोर करेंगे। तो x की जो वैल्यू है वो 3 है, x की वैल्यू हमें मिल गया 3, मतलब लेंथ 4 है, ब्रेथ 3 है और उसका डायगोनल 5 दिया है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, एरिया निकालने के लिए पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया इसको लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज 4 and breadth is 3, so this is total 12
unit square. Okay, unit square. So this is the area of the rectangle. So that's it from today's class.